رات کے 11 بج رہے تھے جب میں چوری کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے۔ یہ چوری کرنا میری مجبوری بن گئی تھی۔ میں دبے پاؤں چلتی ہوئی کپڑے کی اس دکان میں داخل ہو گئی۔ زرق بر خوبصورت ملبوسات مختلف ڈمی پر آراستہ تھے، جن کی چمک اور خوبصورتی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ میں بھی ظاہر یوں ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے دکاندار سے کپڑے نکلوا کر دیکھنے لگی، لیکن آہستہ آہستہ ہوتی ہوئی دکان کے اس حصے کی طرف چلی آئی تھی جہاں پر ایک بھی ملازم نہیں تھا۔ یہ دکان بہت بڑی تھی اور یہاں پر رش بے تحاشا۔ جیسے ہی میں نے ایک سوٹ نکال کر اپنی چادر کے نیچے چھپایا، اچانک ہی دکان کا مالک اس طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ خوف کے مارے میں بری طرح کانپ رہی تھی اور پھر وہیں پر ایک بڑے سے گٹھر کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ سوٹ تو میں نے واپس رکھ دیا تھا، لیکن دکان کا مالک یہیں پر کھڑا رہا۔ اسے کھڑے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا تھا اور رات کے 12 بج گئے جب وہ بلند آواز میں اپنے ملازموں کو کہنے لگا، چلو اب دکان بند کرنے کا وقت ہو گیا ہے، سب اپنے اپنے گھر جاؤ، میں بھی دکان بند کر کے جا رہا ہوں۔ اچانک ہی اس نے دکان کی روشنیاں گل کرنا شروع کر دی اور میں سناٹے میں رہ گئی۔ تو کیا میں اس دکان میں قید ہو کر رہ جاؤں گی؟ لیکن اگر صبح سویرے کسی نے مجھے دیکھ لیا تو انہوں نے مجھے تو خوب ذلیل کرنا ہے، ضرور مجھے وہ پولیس میں گرفتار کروا دیں گے۔ یا خدا، یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ اب میں اپنے آپ کو کوس رہی تھی کیونکہ دکان مکمل طور پر سیل ہو چکی تھی اور یہاں پر گھپ اندھیرے اور خوفناک سناٹے میں اتنی بڑی دکان میں اکیلی بیٹھی اپنے نصیبوں کو رو رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اچانک دکان کے اندر سے عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی تیز تیز قدموں سے چل رہا ہو۔ میں حیران بھی تھی کیونکہ یہاں پر میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی روتے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اچانک ایک خوفناک آواز اس اندھیرے میں گونجی تھی، چپ ہو جاؤ لڑکی، کیوں رو رہی ہو؟ وہ جو کوئی بھی تھا وہ نہایت غضبناک ہو رہا تھا۔ سفید روشنی کی طرح چمکتا ہوا ایک نوجوان بالکل میرے سامنے کھڑا۔ اچانک ہی پوری دکان کی روشنی جل اٹھی اور میں اسے روشنی میں دیکھ رہی تھی جو نہائی ہوئی تھی، خوبصورت سفید رنگ کا لباس پہنے میرے سامنے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میں دم بخود رہ گئی اور وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا میرے پاس آ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے آج میری عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ کیا سچ میں ہی کنیز فاطمہ آج برباد ہونے والی ہے؟ میں اپنے آپ پر ماتم کر رہی تھی۔ میرا نام کنیز فاطمہ ہے۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ میں اپنی بیوہ ماں اور بڑی باجی کے ساتھ ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں رہتی تھی۔ اماں ایک بنگلے پر کام کرتی تھی اور انہوں نے ایسے ہی اکیلے ہم دونوں کو پالا تھا، کیونکہ جب ہم دونوں بہت چھوٹی تھی تو ابا نے اماں کو طلاق دے دی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کسی اور کو پسند کرتے تھے اور ان کی شروع سے ہی خواہش تھی کہ وہ کسی امیر گھرانے میں شادی کریں، لیکن اماں کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ اماں جب شادی ہو کر آئیں تو انہوں نے پہلے ہی دن اماں سے کہہ دیا کہ وہ انہیں نہیں بلکہ عروسہ نامی ایک لڑکی کو پسند کرتے ہیں اور جلد ہی اسے شادی بھی کر لیں گے کیونکہ وہ بہت امیر ہے۔ یہ سن کر اماں کی امیدیں ٹوٹ گئی، لیکن کئی سال گزر گئے۔ شادی کے 4 سال بعد اچانک ابا نے اماں کو طلاق دے دی، جب تک ان کی 2 بیٹیاں بھی ہو چکی تھی۔ میں اور بڑی باجی، ہم دونوں تو باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے۔ ابا نے پلٹ کر ہماری خبر نہ لی اور ہم ایک کرائے کے گھر میں آ کر رہنے لگے۔ لوگوں نے بہت اماں سے کہا کہ وہ دوسری شادی کر لیں، ابھی کم عمر ہیں، لیکن اماں نے ہماری خاطر دوسری شادی نہیں کی اور ایک بنگلے میں کام کرنے لگی۔ بنگلے کی مالکن بہت امیر تھی، لیکن وہ حد سے زیادہ کنجوس عورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج تک اماں کی تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوا تھا۔ پھر میں نے میٹرک کرنے کے بعد گلی میں موجود ایک اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا، جہاں پر مجھے 2000 روپے تنخواہ مل جایا کرتی، جو ہماری زندگی گزارنے کے لیے ناکافی تھی۔ پھر خدا خدا کر کے باجی کا ایک اچھے گھرانے سے رشتہ آیا تو اماں نے فوراً ہی ہاں کہہ دی، کیونکہ باجی اور میں شکل و صورت کے لحاظ سے بہت خوبصورت تھے۔ میں تو باجی سے بھی 4 گنا زیادہ خوبصورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میری کئی لڑکیوں سے دوستی تھی جو صرف میری ظاہری خوبصورتی کی وجہ سے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتی تھی۔ پھر باجی کا رشتہ آیا تو اماں پریشانی سے کہنے لگی، تھوڑا بہت تو ہے اس نے جمع کیا ہے، لیکن تیری باجی کے کپڑے کہاں سے لاؤں گی؟ میں تو بیگم صاحبہ کی منتیں کر کے آئی ہوں کہ مجھے تھوڑے سے پیسے ادھار دے دے، میں بعد میں اتار دوں گی، لیکن وہ بڑی ہی کنجوس عورت ہے۔ کہنے لگی کہ بھائی تیری زندگی کا کیا بھروسہ، تم مر کھپ گئی تو میرے پیسے کون دے گا؟ مجھے تو اس لالچی عورت پر شدید غصہ آیا تھا۔ وہ میری اماں کے بارے میں ایسی بات کیسے کر سکتے تھے؟ باجی جو بہت ہی اداس تھی، شاید اسی وجہ سے کہ ان کی شادی ایسے نہیں ہو رہی تھی جیسے محلے میں رہنے والی باقی لڑکیوں کی ہوتی تھی۔ لیکن میں دل میں سوچتی کہ جو لڑکیاں یتیم ہوتی ہیں اور غریب بھی، انہیں تو شادی کے خواب بھی نہیں دیکھنے چاہیے۔ پھر باجی کی شادی میں 3-4 دن ہی رہ گئے تھے۔ اماں اپنی مالکن سے باجی کی شادی کا جوڑا لے کر آئی، لیکن باجی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ وہ جوڑا جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ مجھے انہیں یوں روتا دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا تھا۔ میں انہیں کہنے لگی، باجی آپ روئیے مت، آپ کی خواہش کیا ہے؟
मुझे इतना बताएं कि आपकी शादी का जोड़ा कैसा होना चाहिए। वो हैरान होकर कहने लगी, तुम क्या करोगी कनीज, कहाँ से लाओगी मेरी शादी का जोड़ा। तो मैं कहने लगी कि बस ये मेरा काम है, आप मुझे बताएं कि आपको किस रंग का जोड़ा चाहिए। वो कहने लगी, बाकी लड़कियों की तरह मेरी ख्वाहिश है कि मेरी शादी का जोड़ा लाल हो। ये सुनकर मैं दिल ही दिल में मंसूबा बना रही थी कि मुझे क्या करना है। जब गरीबों का मददगार कोई नहीं होता तो उन्हें खुद ही हिम्मत दिखानी पड़ती है। और वो जो वहाँ पे महल जैसी दुकानें शहर में मौजूद थी, वहाँ सिर्फ अमीरों के जाने का हक नहीं था, हम गरीबों का भी वहाँ से कपड़े खरीदने का उतना ही हक है। मैंने सोच लिया था कि मैं बाजी की ये ख्वाहिश पूरी करके रहूंगी। उनका लाल रंग का जोड़ा जो खास वो शादी के मौके पर पहनेगी, मैं वो किसी तरह हासिल करके रहूंगी। अब मैं चोरी करने का इरादा रखती थी, लेकिन मैंने अम्मा और बाजी को इस इरादे की भिनक भी नहीं लगने दी। फिर उस रात मैं चुपके से घर से निकली थी, लेकिन आगे जाकर मेरे साथ ये हादसा पेश आ गया जो मैंने सोचा भी नहीं था। सामने खड़ा नौजवान खौफनाक नजरों से मुझे गुस्से से देख रहा था। ओहो, तो तुम चोरी करने के लिए इस दुकान में आई थी, लेकिन तुम्हारे रोने की वजह से मेरी नींद खराब हो गई है। मैं पूरी तरह घबरा गई कि इस सन्नाटे में तो मुझे उसके सोने की आवाज भी नहीं आई थी। मुझे तो लग रहा था कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ। अब मैं खामोश बैठी थी। फिर मैं रोते हुए उससे कहने लगी, आज मेरी बहन की शादी है, लेकिन हम बहुत गरीब हैं। उसके पास शादी का जोड़ा नहीं है। मुझे एक सूट चाहिए था, इसलिए मैं यहाँ आ गई चोरी करने के लिए। लेकिन तुम मुझे चेक कर लो, मैंने कोई चीज चोरी नहीं की। अब मुझे घर जाने दो। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए थे। मैंने देखा वो गौर से मुझे देखे जा रहा था। उसके देखने से मैं बहुत घबरा रही थी। फिर उसने मुझे उठने का कहा था। मैं कांपते वजूद के साथ उठी तो उसने मेरे हाथों में 1 2 नहीं बल्कि पूरे 10 जोड़े थमा दिए और कहने लगा, ये लो, आधे तुम अपनी बहन को दे देना और आधे खुद पहन लेना। मुझे यकीन है कि तुम इन जोड़ों में बहुत खूबसूरत लगोगी। अब वो गौर से मेरे वजूद को देख रहा था। मैं हैरान रह गई। दिल तो खुशी के मारे हवा में उड़ रहा है, इसलिए हैरत से उससे पूछने लगी कि आप कौन हैं। तो वो बेनियाजी से कहने लगा, मैं इस दुकान का मालिक हूँ। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, साहब जी, आपका दिल कितना बड़ा है, आपने मेरी इतनी मदद की। कभी जिंदगी में मुझे ऐसा मौका मिला तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैंने फौरन ही उसे कहा तो न जाने वो क्यों मुस्कुरा दिया। फिर मैं तेजी से बाहर आ गई। रात के 1 या 2 का टाइम हो रहा था और मैं तेजी से घर जा रही थी। आज मैं 1 जोड़ा लेने के लिए निकली थी तो उस नौजवान की मेहरबानी कि जो मुझे 10 जोड़े दे दिए। मैंने सोच लिया था कि ये सारे सूट बाजी के जहेज में काम आएंगे। फिर दूसरे दिन बाजी की बारात आ गई। मैंने एक सादा सा जोड़ा पहना था, लेकिन सब कह रहे थे कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। ज्यादा खुशी तो मुझे बाजी को देखकर हो रही थी, क्योंकि लाल रंग के दुल्हन के लिबास में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और उनके चेहरे पर हकीकी खुशी थी। बार बार मुझे कहती कि मेरी छोटी बहन मेरा किस कदर ख्याल करती है। तुमने तो मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी और लाल रंग के जोड़े में मुझे रुखसत कर दिया। मैंने उन्हें गले से लगा लिया था। बहन के बिछड़ने का दुख तो था, लेकिन उससे ज्यादा खुशी उसकी शादी की हो रही थी, ताकि वो अपने घर जाकर एक खुशहाल जिंदगी गुजारे। बाजी रुखसत होकर अपने घर चली गई और मैं और अम्मा ही रह गए थे। मैं भी उस दिन छत पर खड़ी थी जब अचानक ही सामने एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर मुझे कोई खड़ा दिखाई दिया था। उसका वजूद अंधेरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे उसका रुख मेरी तरफ है और वो मुसलसल मुझे देखे जा रहा। फिर अचानक ही मेरी आंखों ने हैरत अंगेज मंजर देख। उसने ऊंची बिल्डिंग से नीचे हवा के जरिए छलांग लगाई थी और वो पलक झपकते ही गायब हो गया। ये देखकर मेरे औसान खता हो गए। मुझे ऐसे देखने वाला शख्स कौन था और वो इतनी तेजी से कैसे गायब हो सकता है। मैं इतनी सहम गई कि दोबारा कभी छत पर ही न गई। अब अम्मा काम पर चली जाती, जबकि मैं स्कूल पढ़ने चली जाती। एक दिन मैं स्कूल से वापस आ रही थी जब रास्ते में खड़े हुए चंद लड़के मुझे छेड़ने लगे। मुझे उनके ऊपर बहुत गुस्सा आया था। खामोशी से सर झुकाकर उनके सामने से गुजरकर जाने लगी तो अचानक वो मेरे पीछे पीछे आने लगे। तभी सामने से कोई चलता हुआ मेरे बराबर में चलने लगा। मैंने गुस्से से सर उठाया तो जैसे ही मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई। ये तो वही दुकान वाला था, लेकिन यहाँ कहाँ से आया? क्या तुम्हारी बहन की शादी हो गई है? वो मुझसे बातें करने लगा तो मैंने देखा वो आवारा लड़के फौरन ही पीछे की जानिब भाग गए। ना जाने क्यों मुझे उसका साथ महसूस करके अच्छा लग रहा था। फिर मैं उससे कहने लगी कि आपका जो मुझ पर एहसान है मैं उसे सारी जिंदगी याद रखूं। लेकिन उसने एक अजीब बात कही कि मैं उसके एहसान का बदला चाहता हूँ। जी, आपको क्या काम है मुझसे? अब मैं थोड़ा सा घबरा गई थी। बस यही कि जब भी मैं तुमसे मुलाकात करने आऊँ तो तुमने कभी इनकार नहीं करना। मैंने उसकी बात पर सर हिला दिया। ना जाने क्यों वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। अब तो अक्सर ही आते जाते रास्ते में वो खड़ा हुआ दिखाई देता। ऐसा लगता जैसे वो मेरा ही इंतजार कर। अब तो मैं हवाओं में उड़ने लगी। फिर इस कदर खूबसूरत नौजवान मुझे पसंद करता क्योंकि उसकी आंखों में मेरे लिए पसंदीदगी झलकती। लेकिन मुझे हैरत भी होती कि वो इतना अमीर दुकान का मालिक और मैं कहाँ गरीब बेवा औरत की बेटी।
जो किराए के मकान में और मामूली सी नौकरी के लिए धक्के खाती। रात को अपने बिस्तर पर लेटी तो आंखों के सामने उसी का चेहरा आ जाता। फिर एक दिन मैं उससे मुलाकात करने दुकान पर गई, लेकिन मैंने देखा दुकान पर सारे अजनबी खड़े हुए थे। वो मुझे कहीं नजर नहीं। उस दुकान के कपड़े तो इतने महंगे थे कि मैं खरीद भी नहीं सकती थी। तभी पास खड़ा मुलाजिम कहने लगा, हाँ बीबी, क्या चाहिए आपको? शायद उसने मेरे हुलिये से ही पता लगा लिया था कि मेरी इतनी औकात नहीं। मैं मायूस होकर पलटने लगी कि अचानक मैं मुलाजिम की आवाज पर चौंक गई, जो कह रहा था कि मालिक, आज तो दुकान पर इतना रश नहीं है, इसलिए मुझे जल्दी छुट्टी चाहिए। मैं दिल ही दिल में खुश हो गई कि वो दुकान पर आ गया है। तभी मैंने पलट कर देखा तो एक अजनबी नौजवान खड़ा था, जो उस दुकान का मालिक था। मैं हैरान हुई कि अगर दुकान का मालिक ये है तो वो कौन है, और वो नजर भी नहीं आ रहा। ऐसी कई बातें सोचती मैं घर आ गई। फिर एक दिन मैं अम्मा की बात सुनकर हैरान रह गई, जब वो कहने लगी कि बशीर की माँ तेरे लिए रिश्ता मांग रही है, अपने बेटे के लिए। ये सुनते ही मैं गजबनाक हो गई। गुस्से से अम्मा से कहने लगी, अम्मा क्या हुआ अगर हम गरीब हैं तो? इसका मतलब यह है कि मैं उस जवारी बशीर से शादी कर लूं? हरगिज नहीं, आप उन्हें फौरन इनकार कर दें। अम्मा कहने लगी, मैं तो इनकार कर दूं, लेकिन उस बशीर से डर लगता है। तुझे पता है वो एक नंबर का आवारा लड़का है, कहीं कोई उल्टी सीधी बात ना कर दे। अम्मा की बात पर मैं गहरी सोच में डूब गई। ना जाने क्यों किसी का खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों के सामने आया था। फिर मैं अम्मा से बेफिक्र होकर कहने लगी कि अम्मा आप इनकार कर दें, जो होगा देखा जाएगा। मैं जानती थी कि वो सब संभाल लेगा। फिर उस दिन रास्ते में ही वो मुझे खड़ा दिखाई दी। मैं उसके साथ एक नहर के किनारे आ गई थी। हम दोनों एक दरख्त के नीचे बैठकर बातें करने लगे। फिर मैं उससे कहने लगी कि मेरे लिए एक रिश्ता आया है, लेकिन वो लड़का बहुत ही आवारा मिजाज है। मैंने साफ इनकार कर दिया है, लेकिन अम्मा को डर लगता है कि कहीं वो मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। ये सुनते ही वो गजबनाक हो गया और कहने लगा, मेरे होते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, तुम सिर्फ मेरी अमानत हो। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गई थी। जल्दी से उसे कहने लगी, तो ठीक है, अपने घर वालों को भेजो रिश्ते के लिए, ताकि हम दोनों की शादी हो जाए। क्या तुम सचमुच में मुझसे शादी कर लोगी? अब वो मेरे जवाब का मुंतजर। मैं हैरान हुई और सर झुकाकर शर्माते हुए कहने लगी, भला शादी से कौन इनकार करेगा? वो बदनसीबी होगी जो तुमसे शादी से इनकार कर देगी। तो वो कुछ सोचते हुए कहने लगा, ठीक है, मैं जल्द ही अपनी अम्मा को लेकर आऊंगा। फिर दूसरे दिन मेरी छुट्टी थी और अम्मा भी घर पर ही थी। बाजी मिलने आई तो मैं खुश हो गई। हम दोनों बहनें बैठकर बातें कर रही थी। जब ही दरवाजे पर दस्तक हुई, मैंने देखा एक नकाब पोश औरत अंदर आई थी। उसने चेहरे से नकाब भी नहीं उतारा और अम्मा से कहने लगी, मैं तुम्हारी बेटी का रिश्ता लेने आई हूँ, अपने बेटे के लिए। ये सुनकर अम्मा हैरान रह गई। मैं घबराए हुए लहजे में उस औरत से कहने लगी, आप कौन हैं? तो मेरी तरफ अजीब सी नजरों से देखते हुए कहने लगी, मैं उसी नौजवान की माँ हूँ जिससे तुमने रिश्ते का कहा था। अब तो मैं उसकी बहुत इज्जत करने लगी और मैंने आजिज़ी और मोहब्बत का इजहार किया। मैं अम्मा से सरगोशी में कहने लगी कि अम्मा, वो एक बहुत बड़ी दुकान का मालिक है इसी शहर में। उसकी कपड़ों की दुकान है। उसने बाजी की शादी के लिए मुझे 10 जोड़े दिए थे। अम्मा भी ये सुनकर खुश हो गई और कहने लगी, इतने अमीर घराने से तेरे लिए रिश्ता आया है, लेकिन इस औरत का हुलिया तो बड़ा ही अजीब है। तो मैं अम्मा से कहने लगी, अम्मा हाँ, ये उसकी अम्मा है। हो सकता है ये दोनों माँ बेटे ही घर में रहते हों। वो लड़का खुद नहीं आया था। अम्मा ने हाँ कह दी और वो औरत कुछ कहे बिना ही वापस लौट गई, बल्कि अम्मा से अजीब से लहजे में कहने लगी, तो हम बारात लेकर कब आए? अम्मा घबराए हुए लहजे में कहने लगी, बहन बस 1 महीना और इंतजार कर लो, मैं अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करूंगी, भले ही मेरी बेटी को रुखसत करके ले जाना। अम्मा बड़ी खुशदिली से उससे बात कर रही थी। फिर वो औरत चुपचाप चली गई। अम्मा बाजी से खुशी से कहने लगी कि अच्छा है, मेरी दोनों बेटियों की जिम्मेदारियां निमट जाएंगी। बाजी हैरत से कहने लगी, अरे वाह कनीज फातिमा, तेरे लिए तो इतने अमीर घराने से रिश्ता आया है। मैं भी खुशी से मुस्कुरा रही थी। फिर एक दिन मैं स्कूल से वापस आ रही थी, जब बीच रास्ते में ही उस जवारी बशीर ने मेरा रास्ता रोक लिया और मुझे धमकियां देते हुए कहने लगा, तूने मेरे रिश्ते से इनकार किया है, देखना मैं तेरा क्या हश्र करता हूँ। लेकिन अचानक ही मेरे जिस्म को जोरदार झटका लगा। एकदम सही से मेरी आवाज बदल गई और मैं उससे खूनखार लहजे में कहने लगी, हाँ क्या कर लेगा तू, बता, तेरी इतनी औकात कि तू मुझसे बदला ले। मैंने अचानक ही उसकी गर्दन पर हाथ रख दी और तेजी से उसकी गर्दन दबाने लगी। उसने बामुश्किल अपनी गर्दन मुझसे आजाद करवाई और ये कहता हुआ भाग गया कि ये लड़की तो पागल है। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी और मैं अपने आप को देख रही थी कि अचानक मुझे क्या हुआ है। घर गई तो मेरी लाल आंखें देखकर अम्मा कहने लगी, खैरियत तो है? कुछ अजीब व गरीब दिखाई दे रही है। लेकिन मैंने उन्हें टाल दिया। मुझे खुद भी अपनी सूरत हाल समझ नहीं आई थी। एक दिन अम्मा के साथ मैं बाजार सौदा लेने गई तो उसी शहर में बड़ी सी दुकान मौजूद थी जो उसी की थी। मैं अम्मा को दिखाने के लिए उस दुकान पर चली आई, लेकिन सामने ही एक गोरा चिट्टा नौजवान बैठा था। मैं उस नौजवान से कहने लगी कि इस दुकान का मालिक कहाँ है? तो वो नौजवान कहने लगा, इस दुकान का मालिक मैं ही हूँ।
आपको क्या काम है, वो खुरदरे लहजे में कह रहा था। मैं हैरान परेशान रह गई। फिर अम्मा कहने लगी, अरे तुम्हारा कोई छोटा भाई होगा जो दूसरी दुकान पर बैठता है, कल ही तो तुम्हारी माँ आई थी मेरे घर। वो मालिक हैरान परेशान रह गया, कहने लगा, अम्मा आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ और मेरे माँ बाप तो इस मुल्क में है ही नहीं, वो तो एक दूसरे मुल्क में रहते हैं, जबकि मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ इसी शहर में रहता हूँ। ये सुनकर अम्मा और मैं हैरत से बुत बन गए थे। तो क्या वो नौजवान मुझसे झूठ कहता रहा था? घर आकर अम्मा मुझ पर बरस पड़ी कि ना जाने तू क्या करती फिर रही है, वो औरत कौन है और उसका बेटा कौन है, तुझे कुछ पता ही नहीं। मुंह उठाकर उन्हें कह दिया कि रिश्ता भेज दे। अब मैं भी सर झुकाए अम्मा की बातें सुन रही थी। मुझे उस पर भी गुस्सा आ रहा था जिसने मुझे पागल बनाया था। उस रात जब मैं बाजी से मिलकर घर आ रही थी तो किसी ने मुझे बीच रास्ते में आवाज दी। मैंने पलट कर देखा तो आज फिर वो उसी दरख्त के नीचे खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने खफ की भरी नजर उस पर डाली और आगे ही आगे चलने लगी। मुझे वो बहुत बड़ा धोखेबाज लग रहा था। वो हैरान होकर सामने आया और कहने लगा, तुम मुझसे नाराज नहीं हो सकती, क्या बात है? मैं गुस्से से उसे कहने लगी, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम उस दुकान के मालिक हो? तुमने हमें रुसवा कर दिया। उसने सर झुका लिया, फिर कहने लगा कि हकीकत ये नहीं कि मैं इस दुकान का मालिक हूँ, बल्कि मैं उसमें रहता जरूर था। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उसकी बात नहीं समझी थी। तभी अचानक उसकी स्याह आंखें खौफनाक अंदाज में फैली। मुझे उनसे डर लग रहा था। वो भारी लहजे में कहने लगा, हाँ ये हकीकत है कि मैंने तुम्हें पहली बार उसी दुकान में देखा था, क्योंकि वो दुकान मेरा ठिकाना है। अक्सर ही मैं वहाँ पर सो जाता हूँ। लेकिन कल रात जो औरत तुम्हारे घर आई थी वो मेरी माँ नहीं, बल्कि वो एक जिन्नज़ादी थी। उसे मैंने ही भेजा था रिश्ते के लिए, क्योंकि मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं उसकी बात सुनकर उछल पड़ी। ये तुम अजीब अजीब बातें क्यों कर रहे हो? अब मैं उसे घबराए हुए लहजे में पूछ रही थी तो मेरी आंखों में झांकते हुए कहने लगा, यही सच है, मैं एक जिन्नज़ाद हूँ। सालों से मैं इस दुकान में बसेरा किए हुए हूँ। वो दुकान बहुत बड़ी है, उसके बेसमेंट में मैं सालों से रहता आ रहा हूँ। अक्सर ही रातों को मैं उस दुकान में घूमता रहता हूँ, लेकिन पहली बार मैंने वहाँ किसी लड़की को देखा था और उसे देखते ही मैं उस पर आशिक हो गया। और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम हो। तुमने खुद ही कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगी और मैं उल्टे कदमों वहाँ से वापस भागने लगी, जबकि वो मेरे पीछे आ रहा था। रुक जाओ, देखो तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगी, मेरी बात सुनो। वो छल्लावे की तरह उड़ता हुआ मेरे पीछे आ रहा था, जबकि मेरे होशो हवास खो चुके थे। धाड़ से घर का दरवाजा खोलकर मैं अंदर आई थी। अम्मा अम्मा मुझे बचा लो, मुझे कहीं छुपा लो, वो जिन्नज़ाद मेरे पीछे पीछे आ रहा है। अम्मा एक भी बात न समझी थी। मुझे अपने सीने से लगाया और कहने लगी, क्या हो गया? क्या बावले कुत्ते ने काट लिया तुझे? मैं रोते हुए कहने लगी, अम्मा ये मजाक का वक्त नहीं है, सच में वो मेरे पीछे लग गया है। अम्मा वो कोई और नहीं बल्कि जिन्नात है। जो कल रात औरत हमारे घर आई थी वो एक भूतनी है। अम्मा वो मुझे अपने साथ ले जाएगी, तुम मेरी शादी उससे मत करना। ये कहते ही मैं अपने होशो हवास खो बैठी थी, जबकि अम्मा मुझे संभालने में मसरूफ थी। जब होश आया तो 2 दिन तक मैं स्कूल भी नहीं जा सकी थी। ऐसा लगता था जैसे वो अभी मेरे सामने ही खड़ा मुझे आवाजें दे रहा है। मुझे हर जगह वही दिखाई दे रहा था। मैं अम्मा को इतने अपने पास भी नहीं आने दे रही थी। अम्मा कहने लगी, सही सही बता, तेरे साथ क्या हुआ है? उन्हें अभी तक कोई बात समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने उन्हें पूरी बात बता दी। अम्मा ने अपना सर पकड़ लिया, फिर गुस्से से कहने लगी, तुझे किसने कहा था कि चोरी करने उस दुकान पर जा, वो भी आधी रात को? और तेरी बहन को रुखसत होना था, वो भी ऐसे 2 जोड़ों में रुखसत हो जाती। अब अगर जिन्नात किसी लड़की के पीछे पड़ जाए तो वो इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ते। अम्मा ने तो मुझे और भी खौफजदा कर दिया था। वो जिन्नात इंसानी रूप लिए बार बार मेरे सामने आता और मुझे पता भी न चलता। हालांकि वो मेरे जहन में इस कदर हावी हो गया था कि मैं उससे शादी करने के लिए भी तैयार थी। यही सोचकर मैं खौफ से कपकपाती। शुक्र था कि इन वक्त पर मेरी आंख खुल गई थी। पर 3-4 दिन गुजरे। अब अम्मा की तबीयत खराब रहने लगी थी। वो घर पर ही आराम कर रही थी। फिर मैंने ही स्कूल जाना शुरू कर दिया। लेकिन जब दोपहर के वक्त अकेली वापस आ रही थी तो अचानक एक आवारा लड़का मेरे पीछे लग गया। बेइख्तियार ही मेरे दिल में किसी का ख्याल आया था। कैसे उस दिन उसने आवारा लड़कों से मुझे बचाया था। वो जिन्नज़ाद था तो क्या हुआ, लेकिन उसने कभी मेरे साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया था। मेरे दिल में उसका ख्याल आया। अचानक ही मुझे एहसास हो गया था वो लड़का तेजी से मेरे पीछे आ रहा था और पीछे आकर मुझे आवाजें देने लगा। लेकिन अचानक ही उसके चीखने की आवाज आई तो मैं दहशत ज़दा हो गई। मैंने मुड़कर देखा, वो दरख्त से लिपटा हुआ चीख रहा था। ना जाने उसके साथ क्या हुआ था। आसपास उसके कोई भी नहीं था, लेकिन ऐसे लग रहा था कि दरख्त ने उसे लपेट में ले लिया है। वो खुद को उससे अलग नहीं कर पा रहा था, इसीलिए खौफ के मारे चीखे जा रहा था। अब मैंने घर की तरफ दौड़ लगा दी, पर मुझे उसी की बात याद आ रही थी कि आखिर उस लड़के के साथ ऐसा क्या हुआ था। लेकिन उस रात मैं सो रही थी जब मुझे अचानक ही अपने करीब सरगोशी सुनाई थी, मैं ऐसे ही तुम्हारी हिफाजत करता रहूंगा।
मेरी शहजादी, कोई तुम्हें छुए ये मुझे मंजूर नहीं। मैंने अचानक ही आंखें खोली। मेरे आसपास कोई भी नहीं था, लेकिन ये कोई ख्वाब नहीं था, बल्कि हकीकत की तरह ये मंजर मेरी आंखों के सामने खड़ा था। मैंने अम्मा को देखा, वो बिल्कुल गहरी नींद सोई हुई थी, जबकि मैं जागती रही। पूरी रात जाग जाग कर मेरी आंखें सुर्ख हो गई थी। फिर अम्मा से लिपट कर सुबह रोते हुए कहने लगी, अम्मा मुझे बहुत डर लगता है, वो बार बार मेरे सामने आता है। अम्मा कहने लगी, जब तक तो उसे अपने जहन में बसा कर रखेगी ऐसा ही होगा, किसी भी तरह करके उसे अपने दिमाग से निकाल दे। एक दिन मैं स्कूल से घर वापस आई तो बाजी आई हुई थी। अम्मा बाजी से कहने लगी, अब इसका भी कोई रिश्ता देख, मैं इसकी शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मुझे बार बार कहती है कि कोई जिनजाद इसे तंग करता है। अगर ऐसी वैसी कोई बात हो गई तो इन चीज़ों का इलाज भी बहुत महंगा होता है। मैं गरीब औरत भला कहाँ से इसका इलाज करवाऊंगी। मैं खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी। फिर बाजी मेरे पास आई और कहने लगी, कनीज सच में तुझे वो जिनजाद दिखाई देता है? वो कैसा दिखता है? बाजी की बात पर मैं सोच में पड़ गई थी। मैं उन्हें कैसे बताती कि वो इस कदर खूबसूरत दिखाई देता है कि कोई भी लड़की उसे देखकर अपने होश खो बैठे, जैसे कि मैं भी उसके इश्क में पागल हो गई थी। अब मुझसे कोई जवाब न बन पड़ा था। दूसरे दिन बाजी किसी को लेकर आई थी। वो दो औरतें थी जो मेरा रिश्ता लेकर आई थी, लेकिन जैसे ही बाजी बुलाने आई तो ना जाने मुझे क्या हुआ कि मैंने जाने से साफ इनकार कर दिया और बुरी तरह से चिल्लाने लगी। बाजी काफी देर तक इसरार करती रही और कहती रही कि आहिस्ता बोलो, वो औरतें सुन लेंगी, लेकिन मैं अपने बस में न रही थी। मुझे उन औरतों से सख्त चिढ़ हो गई थी। उन औरतों के जाने के बाद अम्मा कहने लगी, लो इसने तो हमारी बेइज्जती करवा दी। वो औरतें कह रही थी कि तुम्हारी बेटी किसी और को पसंद करती है तो हमें क्यों बुलाया। बाजी गुस्से से कहने लगी, आखिर तुझे क्या हो गया था? मैं सर झुकाई बैठी आंसू बहा रही थी। मैं उन्हें कैसे बताती कि सामने ही तो वो जन्नत मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में मेरे लिए तपश थी। मैं उससे इतनी खौफजदा हो गई कि खौफ के मारे उन औरतों के सामने ही न गई। फिर उस दिन मैं स्कूल से वापस आ रही थी जब वो हमेशा की तरह रास्ते में खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। मैं यहाँ से बचकर निकलना चाहती थी, लेकिन उसने मेरा रास्ता रोक लिया। अब मैं उसके सामने हाथ जोड़ दिए और रोते हुए कहने लगी कि मेरा पीछा छोड़ दो। वो कहने लगा, तुम्हारे लिए सिर्फ मेरी बारात आएगी, इसलिए अपनी माँ से कह देना कि रिश्ते तलाश करना छोड़ दें। उसकी आंखों में खतरनाक हद तक संगीनी थी। मैं बेबसी की हालत में चलती हुई घर आ गई थी। अब अम्मा मेरे लिए दूसरा रिश्ता तलाश कर रही थी। मैंने अम्मा से कहा कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे शादी के नाम से नफरत है। अम्मा कहती थी कि ये तू नहीं बल्कि वही जिन कह रहा है जो तेरे अंदर मौजूद है, तो उसकी जुबान बोल रही है। मैं घंटों घंटों आईने में खुद को देखती रहती। मुझे अपने आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता। मैं बिल्कुल होशो हवास से बेगाना होती जा रही थी। लेकिन एक दिन मैं घर में अकेली थी जब दरवाजे पर एक मांगने वाली आई। जो ही मैंने उसे कुछ खुराक दी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर दुख भरे लहजे में कहने लगी, जो वो कहता है वही कर लो, उससे शादी कर लो, तुम्हारे ऐश हो जाएंगे। मैंने जल्दी से उससे हाथ छुड़वाया था। कौन हो तुम? मैं सख्त दहशतज़दा थी। अरे मैं एक बकारन हूँ, लेकिन बहुत बड़ी बीमारी का शिकार थी। वो कई सालों से मेरी मदद करता रहा है। वो बहुत नेक है, तुम्हारे दिन बदल जाएंगे, तुम उससे शादी कर लो। अब मैं सुन खड़ी थी जबकि वो दूर गली में जाकर गायब हो गई। अम्मा ने मुझे ऐसे दरवाजे पर खड़े देखा तो गुस्से से कहने लगी, पहले ही लोग अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं तुम्हारे बारे में, ऊपर से तुम दरवाजे पर खड़ी हो, क्या कहेंगे लोग। अम्मा मुझे धकेलते हुए अंदर ले आई थी, जबकि मैं उस बूढ़ी फकीरनी की बातों को सोचे जा रही थी। अम्मा की लाख कोशिशों के बावजूद भी मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आया था। अब बाजी भी हमला थी, अनकरीब उन्हें बच्चा होने वाला था, लेकिन उनके शौहर का रोजगार अचानक खत्म हो गया। वो परेशान होकर अम्मा के पास चली आई। रोते हुए कहने लगी, मेरी सास कहती है कि डिलीवरी अपनी माँ से करवाओ। मैंने उन्हें समझाया भी है कि मेरी माँ एक गरीब बेवा औरत है, वो भला मेरी डिलीवरी कैसे करवाएगी। लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि हमारे खानदान का रिवाज है कि पहला बच्चा मैके में होता है। बाजी का शौहर भी मजबूर था क्योंकि उसके पास भी पैसे नहीं थे और अम्मा के पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं थी। मैं बाजी को दिलासा देती कि बाजी आप फिक्र न करो, सब कुछ हो जाएगा। बाजी कहती, आजकल तो तेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, वैसे भी मेरी वजह से ये सब हुआ है। उस दिन ना तो मेरे लिए वो कपड़े चोरी करने दुकान पर जाती और ना ही तेरे साथ ये सब होता। बाजी को अभी तक उस बात पर अफसोस था। मैं उन्हें समझाते हुए कहने लगी कि ऐसा सोचना छोड़ दो, जो नसीब में होता है वो होकर रहता है। लेकिन उस दिन बाजी की तबीयत अचानक खराब हो गई। मैं मदद मांगने के लिए आधी रात को बाहर गई। अम्मा कहने लगी कि जाकर कोई रिक्शा वगैरह देखो, तुम्हारी बाजी को अस्पताल लेकर जाना होगा। मैं पागलों की तरह सड़क पर फिर रही थी, तभी दूर से एक रिक्शे वाला आता दिखाई दिया। उसने आते ही रिक्शा रोक लिया। फिर बाजी को लेकर मैं और अम्मा अस्पताल चले गए, लेकिन डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा और हजारों रुपए जमा करवाने का भी कहा, क्योंकि ये एक प्राइवेट अस्पताल था। सरकारी अस्पताल यहाँ से सैकड़ों मील के फासले पर था। अम्मा इतनी परेशान थी, कहने लगी, जा तू पड़ोसन से थोड़े पैसे उधार ले आ,
क्या पता वो उधार दे दें, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। अब मैं पैदल ही घर की तरफ पागलों की तरह चलती आ रहे थे, जब बीच रास्ते में मुझे किसी ने आवाज देकर रोका। जैसे ही मैं पलटी तो सामने खड़े उस जिनजात को देखकर हैरान रह गई। वो धीरे धीरे चलता मेरी तरफ आ रहा था। तभी मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, खुदा के लिए मुझे परेशान न करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। वहाँ मेरी बहन जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। तभी वो नरम और मेहरबान लहजे में कहने लगा, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, तुम्हें परेशान करने नहीं। ये लो पैसे जो तुम्हारे बहुत काम आएंगे। उसने बहुत सारे पैसे मेरे हाथ में थमाए थे, जबकि मैं सुन खड़ी उसे देखती रह गई। फिर वो सरगोशी में कहने लगा, जल्दी जाओ, वहाँ तुम्हारी बहन को तुम्हारी जरूरत होगी। ये सुनकर मैं भागती हुई अस्पताल आई। जिस बात के लिए मेरी और अम्मा की रातों की नींदें हराम हो गई थी, वो उसने चुटकियों में सारे मसले हल कर दिए थे। बेइख्तियार मेरे दिल की कैफियत बदल गई। मैं जो हर वक्त डरी सहमी रहती थी, अचानक ही ना जाने मुझे क्या हुआ था। मैं उसका इंतजार करने लगी। अब मेरी आंखें उसकी ही राहें तलाश करती रहती। अब मैं जानबूझकर उस रास्ते से गुजरती और हर दरख्त के नीचे उसको देखने की ख्वाहिश करती। मैं सोचती कि कहीं तो वो मुझे दिखाई दे, मैं उसका शुक्रिया अदा करूं। लेकिन अब वो मेरे सामने आता ही नहीं था और मुझे इश्क का रोग लग गया था। हाँ, सच में ही मुझे उस जिनजात से इश्क हो गया था। बाजी खैर खैरियत से अपने घर चली गई, लेकिन अम्मा बहुत बीमार रहने लगी। अम्मा बार बार मुझे कहती कि बस मरने से पहले तुझे किसी के साथ भी शादी करके रुखसत कर दूं। मैं नहीं चाहती कि मेरे पीछे तेरी जिंदगी खराब हो। लेकिन अब पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गया था कि ये इसकी बेटी ठीक नहीं है, ये कासेब ज़दा लड़की है। सब लोगों के कहने पर लोगों ने मेरे लिए रिश्ते भेजना छोड़ दिए थे। वैसे भी एक गरीब और बेवा औरत की बेटी से किसको दिलचस्पी हो सकती थी। लेकिन कहते हैं ना कि बदकिस्मती मुंह खोल कर खड़ी होती है, और यही मेरे साथ हुआ था। जब अम्मा एक दिन इतनी ज्यादा बीमार हुई कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। वहाँ वो 15 दिन दाखिल रही और अचानक ही इंतकाल कर गई। मुझ पर तो क़यामत टूट पड़ी थी। बाजी तो अपने घर की हो गई थी, लेकिन मैं तो बिल्कुल ही बेसहारा हो गई थी। रो रो कर मेरी हालत बुरी थी। सब मोहल्ले वाले कहने लगे कि अब इस लड़की का क्या होगा। बाजी के ससुराल वाले कहने लगे कि ये लड़की हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए हम इसे हरगिज अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। मैं बैठकर अपने नसीबों को रो रही थी। बाजी मजबूर थी। फिर अम्मा के तीसरे ही दिन बाजी को जबरदस्ती उसके ससुराल वाले लेकर चले गए, क्योंकि उसका छोटा बच्चा था, जबकि मैं अकेली उस घर में अपनी इज्जत बचाने की फिक्र में थी। लेकिन आधी रात हुई तो अचानक कोई दीवार से कूदा। मैंने देखकर चीखना शुरू कर दिया तो वो बाहर भाग गया। दूसरे दिन सारे मोहल्ले वाले जमा हो गए और कहने लगे, हमें इस लड़की के बारे में कुछ सोचना चाहिए। देखो, मौलवी राशिद बीवी के मरने के बाद अकेला रहता है, उसके 4 बच्चे भी हैं, वैसे भी दूसरी शादी करना चाहता है। हमारा ख्याल है कि हम इस लड़की का निकाह उससे कर देते हैं, उसे भी सहारा मिल जाएगा और मौलवी राशिद को भी बीवी मिल जाएगी। ये सुनकर तो मुझ पर कयामत टूट पड़ी, क्योंकि वो 50 साल बूढ़ा शख्स था। वो भला मेरे साथ ऐसा जुल्म कैसे कर सकते थे। मैं उस मजमे पर नजर डाल रही थी, लेकिन अचानक ही जैसे मुझ पर बहार आ गई, क्योंकि मैंने मजमे में खड़े उस जिनजात को देख लिया था, जिसकी आंखों में मेरे लिए तकलीफ थी। वो मुझे ही देख रहा था, लेकिन मोहब्बत भरी नजरों से। तभी मैं सबके सामने खड़ी हुई और कहने लगी, मेरा निकाह हो चुका है, इसलिए मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। अब सारे मोहल्ले वाले हैरान थे। वो कहने लगे कि ये क्या कह रही हो लड़की, तुम्हारा निकाह किससे हुआ है? वो अभी तक सामने क्यों नहीं आया? इसलिए क्योंकि कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उसका निकाह अम्मा के सामने हुआ था और अम्मा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे ये बात मालूम है और मैं उसी के साथ जाऊंगी। वो सामने खड़ा शख्स मेरा शोहर है। अब मैंने उसे जिनजात की तरफ इशारा कर दिया था, जिसकी आंखों में बेपनाह हैरत थी। फिर लोग कहने लगे, ठीक है, अगर तुमने इस बात से पर्दा उठा दिया है तो हमें भी कोई एतराज नहीं, हम तुम्हें इसी नौजवान के साथ रुखसत करते हैं। यूं मैं उसके साथ आ गई थी। वो एक सुनसान जगह पर मुझे लेकर आ गया और हैरत भरे लहजे में कहने लगा, तुम मेरे साथ कैसे रहोगी? मैं एक जिनजात हूँ, क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं रख सकते? मैं इस दुनिया में भटकती रहूं और तुम ये बर्दाश्त कर लोगे? तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम मुझ पर आंच नहीं आने दोगे। मैं उसे उसका वादा याद दिला रही थी। फिर वो कहने लगा, ठीक है, अगर तुमने सबके सामने मेरे साथ का इकरार किया है तो मुझे भी ये साथ कबूल है। आओ, मैं तुम्हें एक नई दुनिया में लेकर चलता हूँ, जो तुम्हारी दुनिया होगी, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें किसी नए राज से रोशनास नहीं करवाऊंगा। अब मैंने एक इंसानों की बस्ती में ही घर खरीद लिया था, जहाँ पर मैं उस जिनजात के साथ रहती। वही मेरी हिफाजत करने वाला मेरा शोहर था और मुझे उसके साथ रहने पर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता। उसकी संगत में मैं बहुत खुश थी। फिर वो दुख भरे लहजे में कहता कि तुमने मेरे साथ रहकर अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली, मुझे इस बात का अफसोस है। तो मैं उससे कहती कि तुम्हारे साथ मैं बहुत खुश हूँ। वो तहफ़्फ़ुज़ जो मुझे इंसान नहीं दे सकते थे, वो खुशी जो मुझे किसी और के लिए अपनी आंखों में मैं नहीं देख सकती थी, वो मुझे तुम्हारी आंखों में दिखाई देती है। और आज मुझे ज़िंदगी की नई खुशी मिल गई है। मैं इस घर में बहुत खुश हूँ। फिर उस रात में बैठकर एक जोड़ा सिलाई कर रही थी। वो हैरान होकर कहने लगा कि ये किस लिए? मैं उसे मुस्कुराते हुए कहने लगी कि
मैं तुम्हें दुल्हन बनकर दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने खुद को तुम्हारी दुल्हन तस्लीम कर लिया है। ये सुनकर वो हैरान रह गया। फिर एक रात वो मेरे पास आया तो मुझे दुल्हन के लिबास में देखकर हैरान रह गया। फिर वो कुछ सोचते हुए कहने लगा, उस रात भी तुम अपनी बहन के लिए शादी का जोड़ा लेने आई थी, लेकिन तुम किस कदर मजबूर और बेबस लग रही थी। उस वक्त मुझे तुम्हारी रोती हुई आंखों से इश्क हो गया था। तुम वाकई एक बेहद खूबसूरत लड़की हो। तुम्हें देखकर कोई भी तुमसे मोहब्बत कर बैठे। उसके मुंह से ये इकरार सुनकर तुम्हें हवाओं में उड़ने लगी। फिर मैं उदासी से कहने लगी कि मैं उन गरीब लड़कियों के लिए कुछ करना चाहती हूँ जो जहेज और पैसे ना होने की वजह से अपने माँ बाप की दहलीज पर बैठी रहती है। मेरी आंखों में उनके लिए बड़े ख्वाब हैं। तो मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारे उन सारे ख्वाबों को पूरा करूंगा। जो भी तुम्हारी ख्वाहिश है मैं कभी उनको अधूरा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसकी बात सुनकर खुश हो गई थी। मैं नहीं जानती थी कि वो मेरे साथ क्या करने वाला है, लेकिन एक दिन वो मुझे एक अनजान जगह पर ले गया। वह एक खूबसूरत जगह थी। तो वो कहने लगा कि यहाँ पर तुम वो कारखाना बनाओगी जहाँ पर सिर्फ दुल्हनों के लिए लिबास तैयार होंगे, और वो तुम गरीब और मासूम लड़कियों को तोहफे में दिया करोगी जो इसके मुस्तहिक होंगी। ये सुनकर मैं खुश हो गई थी। वाकई उसने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया था। मैं अपने उस कारखाने में मसरूफ हो गई। मेरी जिंदगी एक नई ढब पर चल रही थी। लेकिन एक दिन बाजी मुझसे मिलने आई। वो अपने ससुराल वालों से छुप कर आई थी और मेरे शानदार से घर को देखकर हैरान रह गई। वो कहने लगी, तूने किससे शादी की है कनीस फातिमा? सारे मोहल्ले वाले कह रहे थे कि तूने एक नौजवान से निकाह कर लिया था। आज बड़ी मुश्किल से मैंने तेरा पता लगाया और तुझसे मिलने आ गई। मैंने सर झुका लिया था, लेकिन रात हो गई थी। वो जिनजाद वापस नहीं आया था, क्योंकि वो किसी दूसरे इंसान के सामने नहीं आता था। फिर बाजी मेरे शोहर का इंतजार करती रही, लेकिन वो होता तो आता। तंग आकर कहने लगी, आखिर तुम्हारा शोहर किस वक्त आता है? मैं सर झुकाकर कहने लगी, बाजी वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो क्या तुम इतने बड़े घर में अकेली रहती हो? मैंने रसानियत से कहा, बाजी वो होगा तो आएगा ना, मेरा कोई शोहर ही नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम? बाजी हैरान रह गई। मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि मोहल्ले वाले मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से करवा रहे थे, इसलिए मैंने उनसे झूठ कहा था। मैंने जिसका नाम लिया था वो कोई और नहीं बल्कि वही जिनजाद था। बाजी की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। फिर वो कहने लगी, क्या तुम इतने बड़े घर में जिन्नात के साथ रहती हो? क्या तुम्हें खौफ महसूस नहीं होता? मैं उससे कहने लगी कि मुझे उसके होने से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है और वो तुम्हारे सामने कभी नहीं आएगा, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम आज मजबूरी में जिंदगी गुजारोगी। मैं हैरत से कहने लगी, बाजी कैसी मजबूरी? मैं अपनी खुशी से उस जिनजाद के साथ रहती हूँ, क्योंकि उसके होते हुए मुझे किसी इंसान का खौफ नहीं होता। जब भी मिलने आओगी मुझे अकेले ही पाओगी, क्योंकि वो जिनजाद हर किसी के सामने नहीं आता। बाजी खामोशी से मुझ पर एक निगाह डालकर अपने घर चली गई, जबकि मैं पीछे मुस्कुराती रही, क्योंकि मैं जानती थी कि ये बात कभी किसी को नहीं पता चलेगी कि इस घर में रहने वाली एक खूबसूरत लड़की अपने जिन्नात शोहर के साथ रहती है। एक शादीशुदा लड़की है, लेकिन हकीकत में वो अभी तक कंवारी है। फिर मैंने एक यतीम खाने से छोटे बच्चे को गोद में ले लिया। वो बहुत मासूम और प्यारा था और लोगों के सामने यही जाहिर किया कि ये मेरा बेटा है। अब मेरी जिंदगी खुशियों से भरपूर हो गई थी। मेरा कारखाना भी खूब चल रहा था, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे कारीगर रख लिए थे कि जिनके हाथों में बहुत हुनर था। मैं अमीर लोगों को लाखों में ये सूट बेचा करती, जबकि गरीबों के लिए सूट बिल्कुल फ्री होते, और यही मेरा काम था। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मैंने जिंदगी भर शादी नहीं की, क्योंकि जिसका इस कदर बड़े दिल वाला हमसफर हो उसे शायद ही किसी दूसरे हमसफर की जरूरत हो। मेरे साथ भी तो यही हुआ था। वो जिनजाद मेरी खातिर अपनी दुनिया को भूल गया था। उसने हमेशा इंसानों की दुनिया में रहना पसंद किया। आज भी वो मेरे साथ इसी घर में रहता है और अभी तक लोग इस बात से अनजान हैं। लोग आते हैं, मुझसे मुलाकात करते हैं, मेरे शोहर के बारे में पूछते हैं, तो मैं उन्हें टाल देती हूँ। पूरी जिंदगी ऐसे ही बहाने बनाती रहूंगी, लेकिन किसी से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने उसी जिनजाद को अपना हमसफर तस्लीम कर लिया।